Good morning, students. In this today lecture, we will further describe about the heat transfer correlations. As you are seeing on the screen, there are some important formula that we will discuss. First, we will discuss the important formula for heat transfer correlations for the laminar flow. Case number 1, over the flat plate. As you are seeing, if ux upon nu, u is the velocity, x is the distance, and nu is the kinematic viscosity, and the multiplication of this ux upon nu is less than 5 into 10 to the power 5, it means the boundary layer is laminar. Then if we have to find out ux upon nu, then we will describe that the boundary layer is laminar or turbulent. If this value is less than 5 into 10 to the power 5, then the boundary layer will be laminar and the velocity distribution is parabolic. Then you have to memorize this one. Next one, if ux upon nu is greater than 5 into 10 to the power 5, then it means boundary layer is turbulent on that particular portion and the velocity distribution will follow the log law or a power law. As you are seeing, if the flow is laminar, then the velocity distribution is parabolic, and if it is turbulent, then the velocity distribution is following a log law or power law. Next one is displacement thickness formula. You have to memorize it. Delta star is equal to 0 to infinite 1 minus small u upon capital U into my dy. Then you have to give in this u small u upon capital U. You have to give in questions this particular relations, and you have to put that value here, and you have to calculate the displacement thickness, and it will be utilized in the numerical problems. Further is the momentum thickness. It is notated by theta, and you will calculate it. Theta is equal to 0 to infinite small u upon capital U bracket 1 minus u upon capital U into my dy. Again you have to give in the ratio of small u upon capital U. You have to put that value here, and that will be in terms of y. As you are seeing, we are differentiating it with respect to y, and we have to apply the limit from 0 to delta, where delta is the thickness. Okay, then we have to calculate the momentum thickness delta. Next one is energy thickness formula. Delta E, that is equal to 0 to delta small u upon capital U. As you are seeing, bracket 1 minus u square upon capital U square into my dy. This one is. Next one is formula number 4, delta upon x. That is important formula that is given by the Belassius. Okay, and it is used to find out the thickness, boundary layer thickness को कैलकुलेट करने के लिए we will utilize this particular formula. Delta upon x is equal to 5 upon under root rex. Here under root rex is your Reynolds number, students. Of Reynolds number we will calculate, as I have already explained you, rho vl upon mu. This is the formula for the Reynolds number, where rho is the density, v is the volume, l is the length, and mu is the dynamic viscosity. Next one is your this delta upon x is equal to 4.64 upon under root rex. This is your von Karman formula, that is also given by von Karman. Next one is delta th upon x is equal to 5 upon under root rex. Here delta upon x is equal to 5 upon under root rex. For it Prandtl number is 1. This will also utilize to find out the calculation of thermal boundary layer. अगर हमें thermal boundary layer की thickness find out करनी है, then we will utilize this particular formula. नेक्स्ट इज डेल्टा टी एच अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू, इन दोनों का जो रेशियो आता है स्टूडेंट्स, डेल्टा टी एच मीन्स थर्मल बाउंड्री लेयर, और जो नॉर्मल बाउंड्री लेयर की थिकनेस है उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं. तो डेल्टा टी एच डिवाइड बाई डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, मार्क इट स्टार बिकॉज दिस फार्मूला इज इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. डेल्टा टी एच अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन Prandtl नंबर पी आर की पावर 1 अपॉन 3. वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड द Prandtl नंबर. ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको डेल्टा गिवन है तो डेल्टा को मल्टीप्लाई करेंगे, Prandtl नंबर की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो हम यहाँ से थर्मल बाउंड्री लेयर की थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं. ये जो नेक्स्ट फार्मूला है, दीज आर द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए 0.664 डिवाइड बाई अंडर रूट REX, बेलासियस के लिए CFX इज इक्वल टू 0.646 डिवाइड बाई अंडर रूट REX, फॉर वॉन कॉर्मन के लिए, एंड सी बार एफ कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस के लिए एवरेज जो फार्मूला आता है 1.328 डिवाइड बाई अंडर रूट REL. ठीक है, तो दीज आर द फार्मूलाज विच इज़ यूज्ड, बट नॉट मच मोर देन यू नीड नॉट टू मेमोराइज दिस वन. दिस इज HX हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट. अगर आपको फाइंड आउट करना है
which will be in terms of Reynolds number and Prandtl number. This is for the Nusselt number. This is important. Nusselt number is equal to hx upon L, और वी कैन से एच एल अपॉन के. फॉर एल लेंथ के लिए अगर हम डिफाइन करेंगे तो एच एल अपॉन के, और एक्स के लिए डिफाइन करेंगे तो एच एक्स अपॉन एक्स, और दैट इज इक्वल टू 0.332 आर ई एक्स की पावर हाफ और पी आर की पावर 1/3. यहाँ से स्टूडेंट्स नसल्ट नंबर हम निकाल सकते हैं. दिस फार्मूला इज यूटिलाइज फॉर ए पर्टिकुलर गिवन लेंथ एच बार एल डिवाइडेड बाई के 0.664 आर ई एल की पावर हाफ, और पी आर की पावर क्या हो जाएगा आपका 1/3. Next one is laminar tube flow. This formula is valid for a particular. This all formula is valid for a particular over a flat plate. Flat plate के लिए सारे के सारे formulas valid हैं. As I have already told you. Next अगर आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, laminar tube flow. अगर tube flow की बात करते हैं तो this is not in your syllabus, but you can see these formulas also. या formula यहाँ से एक बार go through हो सकते हैं ये पर्टिकुलर फार्मूले, बट दिस इज नॉट इन द सिलेबस. नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो की. आफ्टर गेटिंग द लेमिनार फ्लो, फर्दर इज द टर्बुलेंट फ्लो. इफ टर्बुलेंट फ्लो इज ओवर ए फ्लैट प्लेट, अगर फ्लैट प्लेट के ऊपर है तो बच्चों डेल्टा अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0.37x डिवाइड बाई आर ई एक्स की पावर हाफ. एक्चुअली दीज ऑल फार्मूलाज आर वैलिड फॉर ए पर्टिकुलर गिवन प्रॉब्लम. Then you have to memorize, you have to see these all formulas and you have to go through these all formulas so that you will be able to solve the numerical problem. And here are some of the notations. Whenever you will study these, then you will understand these one. ये सी एफ बार एक्स एवरेज फार्मूला है इसके लिए. नसल्ट नंबर के लिए सिमिलरली ये नसल्ट नंबर के लिए फार्मूला है, ये आपका नसल्ट नंबर के लिए पर्टिकुलर फार्मूला है. ओके, एंड दीज आर ऑल आर वैलिड फॉर ए पर्टिकुलर फ्लैट प्लेट. Whenever you will solve the numerical problems, then you will understand what is the utilization of these formulas for a particular tubes के केस में भी आप इसको मेमोराइज रख सकते हैं. नसल्ट नंबर क्या होता है, एन यू बार इज इक्वल टू 0.023 इंटू आर ई की पावर 0.8 इंटू पी आर की पावर 1.3, और जो एच बार होता है आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट 0.023 के बाई डी आर ई की पावर 0.8 पी आर की पावर 1/3. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं ये हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, तब हम वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे. ठीक है, अब कुछ एम्पेरिकल कोरिलेशंस है फॉर फ्री कन्वेक्शंस के लिए. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपको मेमोराइज करने हैं. चाहे ऊपर वाले में से मैक्सिमम फार्मूला आप याद भी रख सकते हैं और नहीं भी याद रख सकते हैं. जैसे एक तो नसल्ट नंबर क्या होता है, नसल्ट नंबर एच एल अपॉन के, ये आपको याद रखना है. ठीक है, एल की जगह एक्स भी हो सकता है, एच एक्स अपॉन के. नेक्स्ट आपको ग्रेसॉफ नंबर, तो ये भी आपको याद रखना है, बीटा जी एल क्यू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई न्यू स्क्वायर. बीटा आपका कांस्टेंट है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है. जी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एल इज द लेंथ, डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस, एंड न्यू इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी. एंड नेक्स्ट वन इज योर Prandtl नंबर पी आर, दैट इज इक्वल टू म्यू सी पी डिवाइडेड बाई के. हियर म्यू इज योर काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सी पी इज द स्पेसिफिक हीट, एंड के इज द थर्मल डिफ्यूजिविटी. ओके, सॉरी, के इज द थर्मल कंडक्टिविटी. Then we can calculate the Prandtl number mu Cp divided by K. Next is vertical plate and cylinders. As you are seeing, the commonly used correlations are for laminar flow N U bar L 0.59 GR PR की power 1.4 1/4 we can write it 0.25. ठीक है, first we have to calculate the GR Grashof number, then we have to calculate the Prandtl number. देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ दीज टू. जैसे हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जी आर पी आर का मल्टीप्लिकेशन अगर आपका 10⁴ से लेकर 10⁹ के बीच में आता है स्टूडेंट्स, देन वी विल से दैट दिस फ्लो इज़ योर लेमिनार फ्लो. और अगर ये लेमिनार फ्लो आता है आपका, तो यहाँ पर देखिए नसल्ट नंबर आ रहा है आपका 0.59 जी आर पी आर की पावर 1/4. तो ये मल्टीप्लिकेशन तो आपको याद है, बट हमें नसल्ट नंबर कैलकुलेट करने के लिए एच एल अपॉन के यहाँ इक्वल टू पुटअप करेंगे, और जो भी अननोन हमें फाइंड आउट करना होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि ये फ्लो कैसा है, आपका लेमिनार फ्लो है. बट मान के चलिए अगर जी आर पी आर की वैल्यू आपकी आ रही है 10⁻9 से 10⁻12 के बीच में, तो बच्चों ये क्या होगा, आपका टर्बुलेंट फ्लो होगा. और टर्बुलेंट फ्लो में हम नसल्ट नंबर का जो फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, एन यू बार इज इक्वल टू 0.10 जी आर पी आर की पावर 1/3. So these are the two most important formula that will be utilized in the numerical problem for the vertical plates. ठीक है, तो vertical plates के लिए जो particular formula है वो आप एटलीस्ट याद रखेंगे. नीचे वाले जो कोरिलेशंस हैं इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में, तो वो पर्टिकुलर फार्मूला और कोरिलेशंस आपको एग्जाम में
दे रखे होंगे। आगे चलते हैं, जैसे मान के चलिए हॉरिजेंटल प्लेट के लिए बात करते हैं, जैसे वो आपका वर्टिकल प्लेट के लिए था। सिमिलरली हियर इट इज़ द फॉर्मूला फॉर द हॉरिजेंटल प्लेट्स। इन केस ऑफ इरेगुलर प्लेट द कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ इज डिफाइंड एज द सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय द पेरीमीटर ऑफ द प्लेट। तो बच्चों बात करते हैं अपर सरफेस हीटेड और लोअर सरफेस कूल्ड। अगर आपकी ऊपर वाली सरफेस क्या है, प्लेट कैसी है, हॉरिजेंटल, ठीक है। तो अगर इसकी अपर सरफेस क्या है बच्चों, हीटेड है, और लोअर सरफेस क्या है, कूल्ड है, तो हम अगेन क्या करेंगे, जी आर पी आर को मल्टीप्लाई करेंगे ग्राशॉफ नंबर और प्रांटल नंबर को। अगर इनकी वैल्यू 10⁻5 से 10⁻7 के बीच में आती है तो फ्लो कैसा होगा बच्चों, लेमिनार होगा। तो उसमें नसेल्ट नंबर जो हम निकालेंगे 0.54 जी आर पी आर की पावर 1/4 से फाइंड आउट करेंगे। अगर बच्चों यही वैल्यू आपकी जी आर पी आर की वैल्यू 2 × 10⁻7 से लेके 10⁻10 के बीच में होगी तो फ्लो कैसा होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। और नसेल्ट नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 0.14 जी आर पी आर की पावर 1/3। ये किसके लिए, अपर सरफेस हीटेड। अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा तब हमें ये यूटिलाइज करना है। बट अगर क्वेश्चन कह रहा है कि लोअर सरफेस हीटेड है और अपर सरफेस क्या कूल्ड है, तो बच्चों ये नीचे वाले फॉर्मूला यूटिलाइज करने हैं आपको। अगेन वही वैल्यूज़ रहेंगी, बस थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस आ जाएगा। जैसे यहाँ 0.54 था तो ये 0.27 हो जाएगा, ये 0.14 है तो इसका ये हो रहा है 0.107। आई थिंक दिस फार्मूला विल बी हेल्पफुल। तो एक तो ये स्टार लगा लेना है आपको, ठीक है। और जब मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे जब आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।